Hello friends, welcome to all of you once again in the lecture number 2 of chapter called as solid state. So in this particular lecture I am going to cover 5 concepts. So one by one we'll see. So the first thing which I am going to teach here, what is the unit cell and its classification. So question, what is unit cell? What is unit cell? So unit cell, it is nothing but it is smallest portion of crystal. It is the smallest portion of crystal which give complete geometry, which gives complete geometry of crystalline substance. Is called as a unit cell. It is just like that. If you consider the wall, example के तौर पे आप समझिए, there is a wall and the wall is having the smallest thing called as a brick. So I can say that brick is a nothing but the unit cell for that wall. I hope you are getting the concept of unit cell. So किसी भी सिस्टम के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, एंड दैट थिंग गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. That is a unit cell. Now we'll see its classification. We'll see its classification of unit cell. Unit cell is of two types. Is it of two types? Primitive and the non-primitive. Primitive and the non-primitive. अब ये क्या होता है? Primitive and then non-primitive. See, if you consider a cube, this is the cube, I'm just making it here, and at 8 corner of the cube there is a 8 atoms. अगर क्या हो रहा है कि atoms जो है वो only corner पे ही हैं, that is called as a primitive. If atoms are placed only at a corner, that is called as a primitive. I hope बात समझ में आ रही है. If atoms are at only corner, is called as a primitive. अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? ये फर्दर जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है. फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड द एंड सेंटर. FC and then BC and then EC. So one by one we'll see it. So what is non-primitive? What is non-primitive? See, when atoms are found at corner प्लस फेस सेंटर पे होगा या फिर बॉडी सेंटर पे होगा या फिर एंड सेंटर पे होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव. इफ आई मेक अ डायग्राम ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिस्टल, सो यू कैन सी हियर. Now this is a cube. I will make a corner वाला atom with a red dot. Now I will make similar one more cube. Now just see. Now here you are able to see one more cube. Now you connect all the points. There is a cube. Now again I am putting all the corner wala atoms with the red dot. Okay,
So we want one more cube, because in non-primitive we got 3 types of system. You connect all the points. Now here also I am putting all the corner wala atoms with the red dot. Now I just want to give you the what is face center. This is I am making body centered, and this is your end center. Are you getting? So when the atoms are found at the corner, and then face center, तो ये जो है आपका फेस है, ये फ्रंट वाला, मैं इसको ब्लैक से दिखाऊंगा फेस सेंटर में. इन अ डायस, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ डायस, वी गेट 6 फेसेस. अभी हर एक फेस के जो सेंटर में एटम होगा, तो ये फ्रंट वाला फेस ले लिया मैंने, उसी के पीछे जो है मैंने ये वाला ले लिया, नहीं ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, अपर एंड बॉटम वन. सिमिलरली दिस इज योर बॉडी का सेंटर. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है. एंड सिमिलरली वी कैन हैव अ एंड सेंटर एटम. सो वी कैन हैव अ, दिस इज योर, हियर वी कैन हैव एन एटम, हियर वी कैन हैव एन एटम, हियर ऑल्सो. So when the atoms are found along with the body center other places, that is called as a non-primitive. I hope you got the idea of non-primitive. Now moving ahead, we'll talk about 7 type of crystal system. 7 type of crystal system. Now just see 7 types of crystal system. It is also called as a Bravais lattice. It is also called as a Bravais lattice. Now just try to understand. ये समझने के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ 6 लेटर्स लिख रहा हूँ. C to her empty. C to her empty जो है, ये मैंने 6 सिस्टम मुझे समझाना है, तो वो सिस्टम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया सिस्टम, फिर यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ मैं, फिर यहाँ पे एंगल्स लिखता हूँ मैं, ओके. फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सियल लैटिस, एक्सियल लैटिस. सी फॉर क्यूबिक, C for cubic. Then T for tetragonal, T for tetragonal. Then O for orthorhombic. Then we got a H for hexagonal. Then we got a R for rhombohedral. Then again we got a M for monoclinic, M for monoclinic. And then we got a T for triclinic. तो ये आपके 7 क्रिस्टल्स हैं, दैट इज ब्रेवाइस लैटिस. अब हमको यहाँ पे समझना है विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल्स कि यहाँ पे जो लाइंस आने वाली हैं उसके एंगल्स की वो कैसे जाएंगी. जस्ट अ मिनट. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द क्यूब, तो क्यूब जो होता है वो परफेक्टली तीनों साइड्स उसके जो होते हैं वो एकदम सेम होते हैं. A बराबर B बराबर C होता है, एंड उसके ऑल द एजेस के एंगल्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं. अगर मैंने यहाँ पे मान लिया ये आपका एक
पॉइंट है, यहाँ से मैं इस तरफ जा रहा हूँ, क्रॉस में जा रहा हूँ, इसको मैंने ब्लैक से किया, फिर मैं बॉटम में जा रहा हूँ, इसको मैंने थिक लाइन रेड से दिखाया है, और फिर मैं लेफ़्ट में जा रहा हूँ, इसको मैंने पर्पल से दिखाया है। सो अगर मैंने तीनों को मान लिया, ये ए है, ये बी है, और ये रेड वाली सी है, सो आई कैन से दैट फॉर लेंथ ऑफ क्यूबिक ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू सी, एंड एंगल्स जो होते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आर यू गेटिंग? अगर किसी बच्चे ने क्या किया, टेट्रागोनल मतलब क्या होता है कि एक आपको जो साइड्स है वो चेंज करना है, तो दो साइड्स सेम होगा, ए इज इक्वल्स टू बी होगा एंड नॉट इक्वल्स टू सी होगा, एंड एंगल्स यहाँ पे जो होंगे तीनों सेम होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? नाउ व्हेन यू कम बैक टू द ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में कैसा होता है कि आपने फिर से एक एंगल को एक साइड को चेंज कर देना है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, पहले मैंने एक को चेंज किया तो मेरे को टेट्रागोनल मिला, फिर मैंने दोनों को चेंज कर दिया तो मुझे ऑर्थोरोम्बिक मिल गया, एंड हियर अगेन एंगल इज सेम, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नो यू कम बैक टू द हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, दो साइड्स सेम होती है, ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और एंगल जो होते हैं यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड your gamma is equals to 120 degree. Now when you talk about the rhombohedral, it is also called as a trigonal, so we get it here, all the three sides are equal, a is equals to b is equals to c, and angles, that is alpha is equals to beta is equals to gamma not equals to 90 degree. अल्फा बीटा सेम होता है और गामा आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। नो कम बैक टू द मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है भाई, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, सेम कंडीशन आपकी इसके लिए भी होती है, ट्राई क्लिनिक के लिए होती है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू सी, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द मोनोक्लिनिक का जो एंगल्स होता है वहाँ पे दो एंगल सेम होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम गोज विद द अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका एक ही चीज़ है, क्यूबिक बनाना है और फिर उसको एक को चेंज करना है, फिर दो को चेंज करना है। सो क्यूबिक का केस और रोम्बोहेड्रल का केस जो है वो लगभग सेम बनता है, खाली एंगल्स एक जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, बाकी दो सेम होते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जस्ट अ मिनट। If you see this crystal, here we are able to see जस्ट ए मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो है तीनों साइड्स मैंने सेम रखे हैं। यहाँ से जब आप बात करेंगे, सो दिस इज योर पॉइंट, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, ये तीनों सेम है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोलना है, क्यूबिक बोलना है। टेट्रागोनल में कैसा होता है कि दो एक्सिस सेम होते हैं और तीसरा डिफरेंट होता है। इफ़ यू सी, ये एक्सिस और ये एक्सिस सेम है, और जो रेड वाला है दिस इज नॉट सेम। आर यू गेटिंग? सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द एंगल्स, योर लेंथ। सो इफ इट इज लाइक टू साइड्स आर सेम, सो वी कॉल इट इज लाइक टू साइड्स अगर सेम हो गए तो उसको टेट्रागोनल, और तीसरा अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो आपका बन जाता है टेट्रागोनल का एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अभी इसमें एक बहुत ही एक चीज़ आती है, एक्सियल लैटिस क्या होता है, तो आपने सुना होगा प्रिमिटिव। तो क्यूबिक जो होता है वो प्रिमिटिव भी दिखाता है, प्रिमिटिव वाले में भी जाएगा, फेस सेंटर में भी जाएगा और आपका बॉडी सेंटर में भी जाएगा। तो ये टोटल तीन तरह के एक्सियल लैटिस दिखाता है। टेट्रागोनल जो है वो प्रिमिटिव तो सारे दिखाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे प्रिमिटिव में जाते ही हैं। ये भी प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव पी 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 पी। अब प्रिमिटिव के साथ में ये क्या दिखाता है भाई, दिस वन योर टेट्रागोनल, प्रिमिटिव के साथ में ये दिखाएगा बॉडी सेंटर, क्या दिखाएगा, बॉडी सेंटर, तो इसको दो बन गए। फिर ऑर्थोरोम्बिक क्या दिखाता है भाई, प्रिमिटिव प्लस फेस सेंटर प्लस बॉडी सेंटर प्लस एंड सेंटर, दैट इज 4। दिस इज प्रिमिटिव ओनली 1। हेक्सागोनल की बात करेंगे तो हेक्सागोनल इज ऑल्सो प्रिमिटिव ओनली 1। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव प्लस ई सी,